Let's start with Parliament. So, this is a topic where they ask many questions each and every year. So, we'll start with 2013. So, as you can see, 2013, yeah. So, first question, they're asking about principles of parliamentary government. Now, you read the option and mark the right answer in the comment. So, if you know, the cabinet is headed by head of the government, that is prime minister, right? So if you eliminate this option, you are left with 3 cancel, 3 cancel. The right answer is E. Next, the parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties. So here they are asking the power of parliament to make laws with respect to international treaties, does it require consent of state or not? So लक्ष्मीकांत जिसने ठीक से पढ़ा है, you might know that इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में जो भी लॉ पास होंगे those will be without the consent of any state. Next question, अमेंडमेंट ऑफ मनी मिल बाय राज्यसभा. सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या उसके इम्पैक्ट क्या होगा. सो इफ़ यू नो, अगर राज्यसभा मनी बिल अमेंड भी करता है तो उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये पूरा लोकसभा के हाथ में होता है. सो ऑप्शन ए इज़ राइट, may consider it or may not accept it, right? Next question, chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of the house. Okay, chairman is not the member of the house, but yes, deputy chairman is. So option 1 is wrong, sentence 1 is wrong. While the nominal members of two houses have no voting right in the presidential election, they have right to vote in vice president's election. ये सही है. So answer will be 2. Let's see 2014. 2014 में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे. फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरिएट, जो क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा. इसमें प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग, यस. सेक्रेटरी असिस्टेंस, यस. अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अरे ये तो बड़े लोगों का काम है भाई, सेक्रेटरीट का काम नहीं है. ठीक है, थर्ड हटा दो, थर्ड हटा दो, थर्ड हटा दो. सो आंसर इज सी. गॉट इट? सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन. ओके, लक्ष्मीकांत पढ़ते समय, कोई भी चैप्टर पढ़ते समय ये ध्यान में रखना कि कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एंड कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ये याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज़ नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. ओके. एंड सेकंड सेज अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली. यस, ये बस वो लोकसभा का ही अधिकार है. एंड द नेक्स्ट इज देयर इज़ नो मेंशन. ट्रू, नो मेंशन. ये दोनों भी सही है. Answer will be C. Okay, so let's see 2015. If you see 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए 2015 में. So there is a parliamentary system of government in India because, सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है the council of minister is responsible to the Lok Sabha. Next, consider the following statement. Rajya Sabha cannot vote on demands of grants. Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. Okay, so क्या होगा इसका सही आंसर? राज्य सभा कैनॉट डिस्कस बजट. कैनॉट डिस्कस, बाप रे, ऐसा थोड़ी होगा यार. हाँ, ये नहीं हो सकता भाई. ये गया, ये गया. Okay, so Rajya Sabha cannot vote on the demand of grants. Yep, this is the fact. Rajya Sabha has no power either to reject nor to amend a money bill. Okay, true.
So right answer will be B. Next, when a bill is referred to a joint sitting, both the House of Parliament has to be passed by. Now क्या होगा इसका आंसर? ये भी एक प्रोविजन है, रट्टा मार लो, सिंपल मेजॉरिटी. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the legislative. No bhai, it is 1/3, cannot be more than 1/3. याद रखना पड़ेगा प्रोविजन. The governor of a state nominates the chairman and legislative council of that particular state. Chairman of a legislative council. Okay. Do you think it is nominated by governor? No. ये पॉलिटिशियन अपने अपने में देख लेते हैं, वो कैंडिडेट वो चेयरमैन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, उस बेसिस पे वो आगे बढ़ता है. सो दोनों ऑप्शंस गलत है. With reference to the Union government, consider for a statement. Department of Revenue is responsible for preparation of Union budget. नहीं पता. No amount can be withdrawn from Council of Union without order of Parliament. ये सही है. अगर दो सही है, ओके. ऑल दिस फ्रॉम पब्लिक नीड द ऑर्डर फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. नहीं भाई, पब्लिक अकाउंट से जो पैसा निकलेगा उसको पार्लियामेंट का ऑथोराइजेशन नहीं लगता है. ठीक है. सो लेट्स सी, 3 कट गया. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ये भी याद ध्यान में रखो, ये भी गया. सो सही जवाब वुड बी सी. सो 2015 के भी क्वेश्चन हो गए. नाउ लेट्स सी 2016. Which of the following statement are correct? A bill pending in Lok Sabha lapses on prorogation. Bill shall not lapse. Okay, second statement is right. Second तो सही है. But yeah, so first, ये first वाला गलत है. Second is right. Answer is 2. The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list. Okay. In the national interest, if a resolution, तो ये प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, इट इज़ बाय राज्यसभा. अगर राज्यसभा इसको पास करता है विथ मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3, देन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट. नहीं भाई, सीएम साहब का अधिकार है. सो ये गलत है. चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर फिक्स होता है, ये भी गलत है. ये यार, ये स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है यार, मतलब ये उसका अधिकार है, कुछ फिक्स नहीं है भाई. पॉलिटिक्स में कुछ फिक्स नहीं है. 2017 राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन. क्या होगा इसका सही जवाब? बताओ, जल्दी बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन amending the constitution. Next, abhi if you notice the question on cabinet secretariat कब पूछा गया? 2016 में. और ऐसा ही क्वेश्चन कब पूछा गया था? लेट्स सी, 2014 में क्या पूछा गया था? फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी. तो भाई कौन बोलता है PYQ रिपीट नहीं होता है? PYQ से ही क्वेश्चन आते हैं भाई, आसपास से आएगा, ऊपर नीचे से आएगा, बट PYQ का रेफरेंस होगा तभी नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन प्रेडिक्ट और आप सॉल्व भी कर पाओगे. नाउ लेट्स से 2018. इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी. नहीं पता. ओके. In the Lok Sabha, the leader was recognized for first time in 1969. This is the fact. In the Lok Sabha, if party doesn't have a minimum 75 members, a leader cannot be recognized as leader of opposition. Okay, अभी जिसने ठीक से चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा था. यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में the criteria is not 75 member, it is 110 seats. ठीक है, तो 75 members नहीं है. They have mentioned 110 seats जिसके पास होगी, एटलीस्ट जिसके पास होगी
उसका लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाएगा। तो 3 तो गलत है, 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, ये गलत, आंसर वुड बी बी। 2020 में कितने सवाल आए थे? ओके, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विथ लोकसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम सवाल कब पूछा गया था? 2017 में। एज इट इज़। नेक्स्ट, along with the budget, FM put forth macroeconomic framework statement। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इट इज़ मैंडेटेड बाय, ये टफ क्वेश्चन था, जिसको पता है उसको पता है, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजीली। इसका FRBM एक्ट जिसने पढ़ा है उसको ही आंसर आता होगा। ओके, सो पार्लियामेंट में हमने 2013 से 2020 तक आए हुए सारे क्वेश्चंस अभी देख लिए हैं। कल हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। सो अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपके रिव्यूज़, आपके सजेशंस वी एक्सपेक्ट इन कमेंट सेक्शन। सो लेट अस नो गाइस, कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव। स्टे ट्यून विद चैनल। थैंक यू।